Assalamu alaikum, everyone. This is Kamran Rahman, and welcome back to the third episode of ACL Studio. In this very specific episode, we are going to be talking about uh, IELTS and how can we prepare ourselves for IELTS fast. In this very specific episode, we have got our guest Sharon Elias, the IELTS trainer. Uh, I warmly welcome Sharon Elias for this episode. Sir Sharon, are you there? Sir Sharon, are you there? Yes, Sir Kamran. Assalamu alaikum, walaikum assalam. Thank you so much. I am very thankful to the University of Spoken English and Sir Kamran for inviting me here in this show. How are you, Sir Kamran? Sir Kamran, are you there? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Yes, Sir, how are you, sir? I'm good. How are you, Sir Kamran? I'm fine, thank you, and I hope you have a great start to the weekend. Yeah. Sir, in this specific tutorial or in this specific episode, we are going to be talking about the IELTS, the importance of IELTS, and how can we prepare ourselves for IELTS fast and effectively. So, sir, there are multiple questions that I've got from my audience. I'll be Mhm. asking these questions, All right. and along with that, uh, first of all, let's just discuss what is IELTS. Okay. IELTS is basically International English Language Testing System, and this is worldwide test that has been conducting all over the world, and it is a test which is for students who are planning to move abroad for studies or for living, or either they have spouses or migrating for any purpose, and especially in English speaking countries. Second thing is कि इसकी जो right pronunciation है, it's IELTS, not IELTS. So I have seen many people, they are confused or they think that IELTS is something else, IELTS is something else. It is IELTS, and that's the right pronunciation. And like Ex- it stands for International English Language Testing System. Exactly, sir. The same case was with me as well. Yeah. A couple of years back, I also used to call it IELTS, but it is not Mhm. IELTS. It is IELTS. Okay. Sir, and we'll also be taking some questions from our audience. Okay, Sure, sure, of and course. let me just start with the first question: that how can a student prepare for IELTS fast, sir? That's a very good question. I would say, like since in English countries or all over the world, there are 2-3 sessions जिसमें admissions होते हैं. तो students के ये questions होते हैं, like for example when they are applying, or all of the sudden they get to know कि यहाँ पे हमारी deadline है और हमें इससे पहले result upload करना है. तो उसके लिए यहाँ पे like they need some fast strategies. So for that I have come up with some strategies कि भाई सबसे पहले to understand what IELTS is, understand like first of all, before starting the like starting to appear in the questions, um, students have to understand what IELTS is. And it's very easy. For example, there are 4 modules. उनको ये समझ आना चाहिए कि IELTS के 4 modules हैं. दूसरी बात यह है कि they should appear in test, a mock test first. जब वो एक mock test में appear करते हैं, they get to know what the test is about. They should learn the strategy of the test. The format of the test is very important, that what this test is going to be about. Now once they understand the format, वहाँ से उनके लिए बहुत easy हो जाता है ये कि कब कौन से टेस्ट अटेम्प्ट करना है. नाउ फॉर एग्जांपल जब उन्होंने फॉर्मेट समझा तो लाइक देयर 4 मॉड्यूल्स, राइट? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. अब लिसनिंग में 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, रीडिंग में 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, राइटिंग में 2 टास्क हैं, स्पीकिंग में 3 पार्ट्स हैं. तो जब वो एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं पहले, लाइक व्हेन वंस दे गॉट टू नो दैट दे हैव टू अपेयर इन टेस्ट इमीडिएटली, तो उनको दे शुड आइडेंटिफाई कि कौन से मॉड्यूल में दे आर हैविंग इश्यूज, ताकि फिर उस मॉड्यूल पे वो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकें. सो दिस वे आई थिंक दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन द एरर्स,
They just need to learn the format of the test and focus on the mistakes they are repeating, silly mistakes or मतलब फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि आप नई चीज़ बहुत जल्दी नहीं सीख सकते, लेकिन जो खामियां या जो फ्लॉज आप में होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कुछ सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो उनको अगर ओवरकम कर लें तो दे कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. All right, sir. All right. Let's just talk about the types of IELTS, sir. Sir, how Okay, many types are there? IELTS is like mainly of three types mainly. Although there are other types as well, but main are academic, general training, and A1 life skills. Academic is for students who are planning to go abroad for studies. Hmm. और अच्छा इसमें एक और बात है, जो मेडिकल Sir, स्टूडेंट्स होते हैं. sir, please, आप थोड़ी सी उर्दू भी बीच में करें क्योंकि हमारे बहुत ओके, सारे ऑडियंस हैं. ठीक है, So ठीक है, they should also know what we are talking about. All right. श्योर. देखिए, एकेडमिक टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए फॉर स्टडीज़, लेकिन जब अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, तो दे आल्सो हैव टू अपेयर इन एकेडमिक. उनके लिए भी ये लाजमी होता है कि या तो वो एकेडमिक टेस्ट लें या फिर वो ओईटी टेस्ट लेते हैं. दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ आइल्स, लेकिन उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती हैं. जो जनरल ट्रेनिंग टेस्ट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बेसिकली जाना चाहते हैं बाहर मुल्क, लाइक दे वांट टू गो फॉर वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, या फिर वो मूव करना चाहते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो दे हैव टू अपेयर इन जनरल ट्रेनिंग टेस्ट. और तीसरा होता है A1 लाइफ स्किल्स, जो कि मेनली यूके के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्पाउसेस लाइक हस्बैंड्स या वाइफ यूके में है और यूके नेशनल्स हैं, तो ये उनके लिए A1 लाइफ स्किल्स टेस्ट होता है. All right, sir. And let's just talk about the proficiency test. How many tests are there? Okay, there are numerous of proficiency tests today. Like after this COVID Hmm. thing, कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशेंसी टेस्ट आ गए, जैसे कि हमारे पास डुओलिंगो है, हमारे पास ऑक्सफोर्ड टेस्ट है यूके के लिए, लैंग्वेज सेट है यूके के लिए, हमारे पास ओईटी है, जीआरई है जो यूएस के लिए होता है, टॉफिल है यूएस के लिए है. ठीक है, उसके अलावा पीटीई टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लाइक एक्सेप्टेबल है. अब इन सब में अगर मैं प्रायोरिटीज़ की बात करूँ, तो जैसे ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सेट तो सिर्फ यूके के लिए हैं, तो लेट्स नॉट, ये टेस्ट यूके में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं. दूसरी Hmm. तरफ हम बात करते हैं पीटीई और डुओलिंगो की. ये भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं या बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं या कैंपस में भी. डुओलिंगो तो खैर ऑनलाइन ही होता है. ये टेस्ट भी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं इन टर्म्स के, अगर बहुत जल्दी स्टूडेंट को अपेयर करना है. इनके फ़ायदे ये हैं कि ये टेस्ट का रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाता है. फिर आते हैं आईएलटीएस की तरफ. अच्छा, टॉफल इज़ मेनली फॉर यूएस. टॉफल यूएस के जिन लोगों को यूएस जाना है उनके लिए है. अच्छा, आईएलटीएस इज़ द मदर ऑफ ऑल टेस्ट. आईएलटीएस में और बाकी टेस्ट में ये फ़र्क है कि आईएलटीएस में कोई ग्लिचेस नहीं है, तो आईएलटीएस इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड. लाइक पूरी दुनिया में आईएलटीएस बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हर जगह पर. इवन गल्फ कंट्रीज की भी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अभी आईएलटीएस को एक्सेप्ट करती हैं. जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को सऊदी अरेबिया या दुबई की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो वहाँ पे भी उसके लिए भी आईएलटीएस, अगर उनके 6 बैंड्स हैं तो वो एलिजिबल हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. तो आईएलटीएस जो है ये बेसिकली इट्स एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो अदर दूसरे टेस्ट हैं ऑनलाइन, ये मेनली स्टूडेंट्स को ये जो क्या कहते हैं उसे, एम्बेसीज एक्सेप्ट नहीं करती, काफ़ी एम्बेसीज. वेयर एज आईएलटीएस इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर. एम्बेसीज, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ सब इन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं. लाइक दे अप्रिशिएट दैट. Fine, sir. Sir, what are some basic and easy steps to consider while appearing for the test? ओके, बेसिक एंड इजी स्टेप्स टू कंसिडर आर, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहिए. अब सबसे पहले जब आपने टेस्ट स्टार्ट किया है, टेस्ट कर रहे हैं आप, तो टेस्ट की फॉर्मेट को समझें और टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझें. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क मैं कह सकता हूँ करके अपना जो स्कोर है वो ख़राब कर देते हैं. लाइक यू नीड अ स्मार्ट वर्क हेयर. अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप बेसिकली जा सकते हैं कि टेस्ट के फॉर्मेट को समझें, जैसे मैंने पहले बताया. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें जब टेस्ट के फॉर्मेट को आप समझ लेते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इश्यूज़ हैं.
अब जो कंसिडर करने वाली चीज़ वो ये है कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टोल्ड के लिसनिंग में हमारे पास 6 टाइप्स हैं और उसमें हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, नोट्स कंप्लीशन आता है, टेबल कंप्लीशन है, डायग्राम होता है, लेबल करना, और हर एक पार्ट की एक अपनी स्ट्रैटेजी है। तो द बेसिक स्टेप्स टू कंसिडर आर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, like how we can बेसिकली फोकस ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन के मतलब लिसनिंग में अगर है तो मैप को अटेम्प्ट करने का एक डिफरेंट तरीका है। अब इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव आईएलटीएस रीडिंग। मोहम्मद वकार ने क्वेश्चन पूछा है, रीडिंग पे ही मैं आने वाला था। रीडिंग के 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग में मेजर इशू जो स्टूडेंट्स को होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जांपल रीडिंग में 40 क्वेश्चंस हैं एंड देयर आर 3 पार्ट्स, तो आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें। लाइक यू हैव 20 मिनट्स, आउट ऑफ 20 मिनट्स गिव 3 to 4 मिनट्स टू रीड क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन। लाइक एज आई सेड इसमें 11 टाइप ऑफ क्वेश्चन है और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। तो जब आप यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं और उसके आंसर के फॉर्मेट को या आंसर के फॉर एग्जांपल के नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, तो आपने इंस्ट्रक्शंस भी समझनी है। So in 3 minutes, try to read all the questions and underline the keywords and understand what the question is about and what is the nature of answer. Nature of answer in a sense कि यहाँ पे letter लिखना है ABCD, या फिर यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है या फिर आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आंसर in 3 minutes. अब within 3 minutes, once you read the questions, now you have around 17 minutes to read the passage. अब यहाँ IELTS रीडिंग में बेसिकली आपने वर्ड बाय वर्ड रीडिंग नहीं करनी। यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब होता है रैपिड रीडिंग, फास्ट रीडिंग, और स्कैनिंग फास्ट रीडिंग टू पुट अ ग्लांस एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आइडिया को गेन करना, लेकिन एक बहुत फास्ट मतलब एक नज़र मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इस पे एग्जाम्पल दूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हम मैगजीन्स देखते हैं। हम कभी भी मैगजीन वर्ड बाय वर्ड, मैंने बहुत कम मतलब जो जज किया है लोगों को, वो मैगजीन्स वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते। दे जस्ट टर्न द पेजेस, वो पिक्चर्स और थोड़ा सा टेक्स्ट पे नजर मारते हैं और उनको समझ आ जाता है व्हाट इज इट अबाउट। ये टेक्निक आपने रीडिंग आईएलटीएस रीडिंग पे करनी है कि क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद उसके फॉर्मेट को समझें, क्वेश्चन कीवर्ड्स को स्किमिंग और स्कैनिंग करते हुए उस स्पेसिफिक लोकेशन को फाइंड आउट करें जहाँ पे आंसर है। जब आपको कीवर्ड्स मिल जाए, उसके 2-3 लाइनें ऊपर, 2-3 जुमले नीचे, लाइक रीड द सराउंडिंग पार्ट, वहाँ पे जब आंसर आपको मिल जाए, आंसर को आंसर शीट पे लिखिए एंड मूव ऑन। दिस इज हाउ यू, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इजी वे टू डू द आईएलटीएस रीडिंग, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, लाइक दे आर टू मच कंफ्यूज्ड, तो जब आप स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं तो ऑलवेज ऑलवेज रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ वेरी केयरफुली इन दैट, बिकॉज ये इसलिए कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में कुछ एक हिडन टेक्निक्स होती हैं और वो फिर आप लाइक हिडन मैसेज होता है ना, जैसे मेन आइडिया जिसे हम कहते हैं, तो उस पर आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। All right, sir. We will move to the questions later on. Sir, what are the importance of mock tests? Importance of mock tests. That's a very good question. Like my strategy is like here, but when I teach, तो मैं हर 3 वीक बाद स्टूडेंट से मॉक टेस्ट लेता हूँ, either they have studied or not. इससे बेसिकली they get to know where do they stand. अच्छा, मॉक टेस्ट से एक्चुअली उनके एक रिजल्ट का उनको आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और मॉक टेस्ट से उनको like they can identify the actual mistakes. For example, whenever you are appearing in a mock test, try to get a bench score and try to understand कि आप अपने इंस्ट्रक्टर से या जो भी पर्सन आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करे उनसे कमेंट्स ज़रूर लिया करें। अब कमेंट्स से आपको पता चलता है कि आपके फ्लॉज क्या हैं और आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी रीडिंग टेस्ट से किया और आपने मॉक टेस्ट अपेयर किया है, मॉक टेस्ट में आपके 5 मिस्टेक्स और 35 करेक्ट आंसर्स हैं, तो चेक करें वो 5 मिस्टेक्स कहाँ पर और क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले पार्ट में 5 मिस्टेक्स आई हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें। दूसरी बात, इफ़ आई टॉक अबाउट राइटिंग, तो राइटिंग में चेक करें कि आपके इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, किस क्राइटेरिया में। लाइक इन राइटिंग मार्किंग देयर आर 4 क्राइटेरियाज, जिसमें टास्क रिस्पॉन्स, कोहेजन एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आता है। तो अ स्टूडेंट शुड कंसिडर कि जब मॉक टेस्ट से उसको ये आइडिया हो जाता है कि किस पोर्शन में उसके बैंड स्कोर कम आ रहा है और किस तरह उसको इन पे जल्दी काम करके अपना बैंड स्कोर बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, लिंकिंग डिवाइसेस, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता कि हमें अपने बेसिकली सेंटेंसेस को लिंक करना है या हमें आइडियाज़ को लिंक करना है, कनेक्शंस कैसे डालने हैं, तो दे कैन ओवरकम दैट। दूसरी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं,
काफ़ी ज़्यादा उनके इश्यूज़ होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स में। तो वो देखें कि क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या जेन्युइन मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ उनको आती है इसमें और क्या चीज़ नहीं आती, ताकि वो सीख लें। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। All right, fine, sir. Okay, let's just talk about the strategies. What strategies should a student should follow? Strategy. Okay, a student has asked about report writing as Sir, well. we will move there later on. Okay. Okay, okay. Strategy. Strategy is like, for example, I always say that there are three basic strategies for IELTS. पहली चीज़ तो Mhm. ये है कि इम्प्रूव वर्क ऑन योर बेसिक्स। आपकी बेसिक्स थोड़ी सी अगर स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी बेसिक्स को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ताकि आपको जो कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है या आपको जो अटेम्प्ट करना है आपको समझ आए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज टेक्निक्स। एज आई सेड, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक डिफरेंट टेक्निक है, तो लर्न द टेक्निक। कुछ मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, बट इट्स वेरी वास्ट। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक डिफरेंट टेक्निक है, जहाँ पे इश्यूज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और उन इस टेक्निक्स को फॉलो करें। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस एंड फोर्थ थिंग इज मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस में वो टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें, अपने बेसिक्स और टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस स्कोर बढ़ाएं। उसके बाद फाइनली बिफोर अपेयरिंग इन द टेस्ट, एक वीक पहले कम से कम एक मॉक टेस्ट अपेयर कर लें, ताकि मॉक टेस्ट में आपको आइडिया हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और जो कुछ आपने स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, क्या वो रियल टेस्ट की कंडीशन में भी आप उनको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ते सब कुछ हैं, दे नो एवरीथिंग, लेकिन जब टेस्ट होता है, मैं जब मॉक टेस्ट कंडक्ट करूँ या फिर रियल टेस्ट में मैं उनसे पूछूँ, तो बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन प्रेशर वो उन चीज़ों पे काम नहीं कर पाते। लाइक दे आर जो हमारा एक प्रॉपर ट्रेडिशनल सीक्वेंस चलता आ रहा है कि फ़ौरन जैसी राइटिंग का टॉपिक मिला और बिना प्लानिंग के लिखना स्टार्ट कर दिया, तो दैट्स रॉन्ग। सो दे शुड बी केयरफुल एंड कॉन्शियस अबाउट दैट। All right, sir. And the last questions, not the last, the second last. Sir, what are some other proficiency tests to consider while moving abroad? Um, other proficiency tests to consider are like we have I think discussed that, जिसमें हमारे पास ये डिलिंगो है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंटरनल टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं कि जब आपने अपेयर करना है आईएलटीएस के बाहर जाने के लिए, जब आप अप्लाई करते हैं एज ए स्टूडेंट, तो दे कंडक्ट देयर ओन टेस्ट, दैट्स ऑनलाइन, लेकिन उसका भी बहुत सब काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं आईएलटीएस से रिलेटेड। तो एक तो वो चीज़ है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम वो भी काम कर सकते हैं। सेकंड इज़ दैट जीआरई, पीटीई, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड, ये सब टेस्ट भी होते हैं, लेकिन अगेन आई वुड से दैट आईएलटीएस इज़ द मदर ऑफ ऑल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आईएलटीएस में ग्लिचेस नहीं है और आईएलटीएस इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। दूसरे के लिए आपको फिर चेक करना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी एम्बेसी इसे एक्सेप्ट कर रही है, और कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी एम्बेसी इस टाइप ऑफ टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही about others. Whereas IELTS, it's openly acceptable everywhere. ऑलराइट सर, कई ऐसे हो सकता है कि एक बच्चा जो है विदाउट एन इंस्ट्रक्टर और विदाउट ए ट्रेनर वो अपने आप को आइल्स के लिए प्रिपेयर करे, क्या ये ऐसे पॉसिबल है? Um, आई डोंट थिंक सो। देखिए, रीडिंग और लिसनिंग के लिए हाँ, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। रीडिंग और लिसनिंग के लिए जी वो कर सकते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनके आंसर शीट्स होती हैं और वो थोड़ा-सा उसको आइडेंटिफ़ाई करके सेल्फ एनालिसिस करके कर लेते हैं। As far as it is a concern of speaking and writing, they need an instructor to assess them. For example, ठीक है, आपने पढ़ लिया और आपने खुद से प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग के लिए आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि बेसिकली आपको गाइड कर ले कि आपके फ्लॉज एक्चुअली है कहाँ पर, आप कहाँ पे मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं। राइटिंग में जैसे मैंने आपको बताया 4 क्राइटेरियाज़ हैं। अक्सर स्टूडेंट्स टास्क तो रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं होते, या उनको ये नहीं आइडिया होता कि हमें एग्जाम्पल कहाँ पे और कैसे पुट करना है, हमें रीजंस देने हैं कि नहीं देने अपने आंसर्स के। तो ये सब उनको एक प्रॉपर बेहतर इंस्ट्रक्टर ही जज करके बता सकता है कि येस, दे डू नीड एन इंस्ट्रक्टर फॉर दीज पॉइंट्स, स्पेशली फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग। All right, sir, let's move on to the last question, and that is how do students prioritize their preparation? ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो किस तरह अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फॉर लाइक व्हाट माय आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स इज ऑलवेज गिव एटलीस्ट 2 आवर्स और 3 आवर्स टू आइल्स। अच्छा, अगर तो ये फास्ट, जैसे हमारा टॉपिक है कि फास्ट अगर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 आवर्स डेली आइल्स को देने हैं। आप डेली एक मॉक टेस्ट, एक प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करें खुद के लिए,
ठीक है, और उसे चेक करें कि आप कहाँ पे क्या एरर इश्यूज हैं। अच्छा, रीडिंग में जैसे मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है टाइम मैनेजमेंट को। लाइक सेल्फ एनालिसिस में कह सकता हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इफ़ यू एनालाइज योर सेल्फ के आपके क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि आईएलटीएस एक बहुत वास्ट है। तो जहाँ पे जिस चीज़ पे इशू है आप ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईएलटीएस रीडिंग की जैसे कि, तो उसमें उनको टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डेली 2 टेस्ट एक साथ कंडक्ट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग 3 पार्ट्स अटेम्प्ट 6 पार्ट्स, 6 सेक्शंस। तो इस तरह उनके जो होता है उनकी टाइम मैनेजमेंट पे इम्प्रूव हो लाइक बूस्ट हो सकती है उनकी टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी बात है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा टेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट दे नीड टू प्रायोरिटाइज के उनकी एक्चुअल मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, और प्रूफ रीडिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग ऐसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट, तो राइटिंग करते वक्त स्टूडेंट्स अक्सर एंड में रीचेक नहीं करते। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो तो बहुत सिली मिस्टेक जो उनको पता है कि मिस्टेक्स है वो उनसे वहीं रह जाती। एग्जामिनर चेक करता है तो वो आंसर शीट चेक करता है, इज नॉट लाइक उसके आप उसको रीजंस नहीं दे सकते। तो दैट्स व्हाई आई से कि प्रायोरिटाइज एवरीथिंग, लाइक प्लान, अटेम्प्ट एंड कीप सम स्पेस फॉर प्रूफ रीडिंग, रीचेकिंग, ताकि आप इन तीनों पे प्रॉपर कलेक्टिवली काम कर सके। और ठीक है आप इन सर। पर काम कर सर जी सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है अपना। कैसे आप उन स्टूडेंट को डील करते हैं जो आते हैं आपके पास और उनकी जो बेसिक्स है इंग्लिश की वो बिल्कुल जो है अप टू द मार्क नहीं होती, तो आप उनको कैसे डील करते हैं और आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि आइल्स के लिए पहले वो क्या करें? देखिए, आईएलटीएस के लिए मैंने जैसे बताया कि बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईएलटीएस काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मिथ है कि आईएलटीएस आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करता है। आईएलटीएस आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं करता। आईएलटीएस आपकी इंग्लिश को चेक करता है, असेस करता है, और उन बेसिस पे आपको बैंड्स मिलते हैं। तो आईएलटीएस में बेसिकली पहले तो स्टूडेंट को अपनी बेसिक अंडर अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये डिनाई करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी इंग्लिश ख़राब है। वो बस कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकते, हम इंग्लिश पे काम नहीं कर सकते, आप हमें इस इतने में बहुत अच्छा स्कोर ला दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने आप को जज करें और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दिस कंप्लीट टेस्ट इज़ इन इंग्लिश। तो पहले तो अपनी बेसिक्स पे काम करें, कोई लैंग्वेज कोर्सेज लें या ग्रामर पे को फोकस करें। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट मुझे लगता है कि कोई एवरेज लेवल का है, जैसे प्री स्टार्टर स्टार्टर लेवल का है, तो अलॉन्ग विद दैट क्लास ही कैन लाइक प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर आईएलटीएस। लेकिन उसको फिर ये याद रखना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है प्रिपरेशन की। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को बेसिक्स पे पहले काम करना चाहिए, बेसिक्स, टेक्निक्स एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। फाइन सर। सर यहाँ पे हमारे एक भाई हैं वकील अहमद जो पूछ रहे हम्म। हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर राइटिंग। सो अच्छा, कुछ राइटिंग आंसर उनका एक बताएं। और क्वेश्चन भी था, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कुछ बात बताएं। आईएलटीएस की राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। फॉर जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 में होता है लेटर, और फॉर रिपोर्ट लाइक फॉर एकेडमिक देयर इज अ रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग में स्टूडेंट्स मैंने बताया कि आईएलटीएस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, ये थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा स्मार्ट वर्क मांगता है। तो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट देम कि आप पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखिए, व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको थोड़ा समझ लिया, यू हैव आइडेंटिफाइड द क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ 3 और 4 पैराग्राफ रिपोर्ट। यहाँ पे ये बेसिकली एक समरी मांग रहे हैं, ये आपके ओपिनियंस और आपकी सजेशंस नहीं मांगते। रिपोर्ट राइटिंग में यू आर नॉट सपोज टू गिव योर ओपिनियंस, यू आर नॉट सपोज टू गिव योर सजेशंस। और दूसरी बात यह है कि ना आप यहाँ पे आप ना ओपिनियन से, ना सजेशन से, ना ही एग्जाम्पल से, क्या चीज़ कितनी है ये बताना है, कैसे क्यों है और कैसे ये नहीं बताना। तो रिपोर्ट राइटिंग में फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन एक्सटेंडेड पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज करें, उसको थोड़ा एक्सटेंड करें। उसके बाद हर फीचर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। हर लाइक सेलेक्ट क्वेश्चन होता है ना, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वे रेलिवेंट। इस तरह एक क्वेश्चन होता है, तो आपको कंपेरिजन्स रेलिवेंट करने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि 4 पैराग्राफ्स बनाएं। पहला पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करें कि आप उसको जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स, फर्स्ट पैराग्राफ में आप उन मेन फीचर्स को एक्सप्लेन करें।
सेकंड पैराग्राफ में मेन फीचर्स, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में मेन फीचर्स को कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, जहाँ पे आपको वास्ट कंपैरिजन्स दिखते हैं। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है वो ओवरव्यू का लिखें, जिसमें आप बेसिकली इन शॉर्ट 1 और 2 सेंटेंसेस में सारे मेन फीचर्स को बता दें कि ओवरऑल इस ग्राफ में हुआ क्या या इस चार्ट में क्या हो रहा है। राइट सर, थैंक यू। एंड सर एक मुझे पूछना था ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से। सर इनका क्वेश्चंस कैसे हो, इनका जो टेस्ट होता है ये कैसे होता है? इज़ इट ईज़ी, नॉट ईज़ी, डिफ़िकल्ट कैसे होता है? सर ज़रा इनके बारे में बताइए आप। स्पाउस टेस्ट जो A1 लाइफ स्किल्स है ये बहुत इजी है। इसमें होता है कि स्टूडेंट्स का लाइक दे हैव टू कम अप विद ओनली 2 मॉड्यूल्स। इनके सिर्फ 2 मॉड्यूल्स में इन्होंने काम करना है, वो कि है लिसनिंग और स्पीकिंग। टोटल टेस्ट ये 18 मिनट्स का होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली 2 कैंडिडेट्स एक साथ टेस्ट देते हैं, लाइक देयर आर 3 पीपल इन द रूम, एग्जामिनर एंड 2 कैंडिडेट्स। अब वो दोनों कैंडिडेट्स बेसिकली एग्जामिनर उनसे डायरेक्ट तो इंटरेक्शन करता है, लेकिन वो ज़्यादा उनकी फोकस होता है कि एग्जामिनर का कि ये दोनों आपस में कितनी अच्छी इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में सही तरह बातचीत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो वो इस तरह इनको चेक किया जाता है, ठीक है। सो A1 लाइफ स्किल्स जो है वो बहुत ईजी है। और मेन चीज़ इसमें यह है कि दे डोंट हैव टू फोकस अबाउट द दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैंड स्कोर। यहाँ पे आपका रिजल्ट सिर्फ पास या फेल होता है, तो उसमें ज़्यादा जैसे कि एकेडमिक या जनरल वालों को टेंशन होती है कि हमें 6 बैंड 7 बैंड 8 बैंड चाहिए। तो लाइफ स्किल्स के स्टूडेंट्स है वो इस मामले में लकी हैं। लाइक इसमें दे आर लकी दैट दे यू नो दे कैन गेट ओनली पास और फेल। अ, सर हमारे एक और भाई ने मैसेज किया है, मोहम्मद आसिम। इनका कहना है कि सर हाउ कैन आई इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनएबल टू स्पीक विद अदर पीपल। मतलब लोगों के सामने ये बात नहीं राइट, कर पाते हैं। ठीक है। Sir, you can see the questions. It is in front. यस, It is on the screen. मोहम्मद आसिम, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एक लैंग्वेज सीखते हैं तो हम एक लैंग्वेज को लाइक रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने जब ये इंग्लिश सीखी, ठीक है, यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अंदर से एक फेयर निकालें एंड ट्राई कि आपने आइडिया अपना पेश करना है और इंग्लिश में ही पेश करना है। लाइक यू हैव टू रिप्रेजेंट योर आइडिया एंड दैट इट्स टू बी इन इंग्लिश, बाय हुक और बाय क्रुक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का एक्चुअली होता है फेयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फेयर, और वो इसलिए होता है कि उनको डर लगता है कि हम गलत ना बोल दें। देखें, मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। आप कोई बहुत गलत बोलेंगे तो क्या होगा, आप आइडिया डिलीवरेंस पे सोचें कि आपने किसी भी हाल में अपना आइडिया डिलीवर करना है, आपने जो बात है वो कहनी है और वो इंग्लिश में कहनी चाहिए, ठीक है। अब जहाँ बात आती है फ्लुएंसी की, तो फ्लुएंसी के लिए आई हैव अ वेरी गुड ट्रिक। कि आप क्या करें कि ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। ऑफ कोर्स हम जब एक सोचते हैं तो हमें लाइक साइकोलॉजी कहते हैं कि इवन वी थिंक इन इंग्लिश। तो व्हेन वी आर थिंकिंग इन इंग्लिश, ऑटोमेटिकली वी स्पीक फ्लुएंटली। तो जब आपकी इंग्लिश यहाँ पे होती है, जो भी आप सोच रहे हैं आप उसे इंग्लिश में सोचें, तो ऑटोमेटिकली आप उसे आपके लफ्ज़ों में वो आ जाता है, राइट। सो Okay. I guess it's enough for today. We started a bit late, ओके, and thank you so much, Sharon Ilyas, for giving us your ओके, precious time. And thank you you're everyone welcome। for watching us. And sir, कोई आपका लास्ट में कोई मैसेज है? So you can go Uh, ahead. देखिए, लास्ट में आई वुड लाइक टू एंड अप बाय सेइंग कि आईएलटीएस ठीक है आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्राई टू फोकस, ट्राई टू जज योरसेल्फ। आप अपने लाइक हर स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि सेल्फ एनालिसिस आना चाहिए। खुद को देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप में क्या क्या फ्लॉज हैं और उन पे काम करें विद कॉन्फिडेंस। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड। एक और चीज़ ये है इम्पोर्टेंट कि अक्सर आईएलटीएस के स्टूडेंट बहुत इंथुजियास्टिकली क्लासेस स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ टाइम बाद जब वो रीडिंग या राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो वो दे थिंक दैट दे आर लाइक ट्रैप्ड, और वो फिर उनकी मोटिवेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दैट्स आई फील लाइक ये थोड़ा सा बैड है। स्टे मोटिवेटेड अनटिल एंड अनलेस यू अचीव योर गोल। देखिए, आईएलटीएस को एक काम की तरह करके ख़त्म करें। वंस जिस एनर्जी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उसी एनर्जी को बरकरार रखे, टेस्ट दें, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है। तो आई वुड से दैट स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे एंथुसियास्टिक। Thank you sir for being with us, and thank you everyone for watching us. And मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज की ये डिस्कशन जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो लिए होंगे इस डिस्कशन से। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमको इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़। यू हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।